Welcome everyone for the class of English. Now we will go through chapter 7 of the book First Flight Glimpses of India. Today we will be with his first part entitled A Picker from Goa. At first we will be with its word meaning. The first is loaves means pieces of bread के टुकड़े. Vertical upright खड़ा हुआ. Third extinguished put off बुझी हुई. Bang means to hit hard, मारना. Rebuke to take to task, झिड़कना. Parapet railing. Plucking to remove out, तोड़ना. Testimony proof, प्रमाण. Starve to die with hunger, भूखे मरना. Plump fat, फुला हुआ, मोटा. This story has been written by Lucio Rodriguez. He was a great Konkani essayist. He was born in 1916 and died in 1973. He wrote articles in English and Konkani. He was a professor of English in colleges in Bombay, now Mumbai, and Goa. He was also a visiting professor of folklore at Indian University in 1969. His popular essays are Silent Soul and Konkani Folk Tales. Before starting the chapter, there are some questions to answer. You watch the first question. What images of people and of places come to your mind when you think of our country? The images of different kinds of people at different places, traditions and professions come in our mind. Next question, what parts of India have you lived in or visited? You may answer this question, to which places you have visited or you lived at. Next question, you may know that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which parts of India saw French and Portuguese influences? Yes, it is Goa, Pondicherry and Mahi. And last is, can you see which parts of India grow tea, coffee? The answer is Assam and Coorg. Now the story. This is a paint portrait of a traditional Gone village baker who still has an important place in his society. यह जो कहानी है यह पेन पोर्ट्रेट है, मतलब अपने अनुभव को अपने कलम से लिखना. दैट इज़ पेन पोर्ट्रेट. एंड यह गोवा की पारंपरिक ग्रामीण नान बाइयों का एक रेखा चित्र है. पेन पोर्ट्रेट का सही मीनिंग, हिंदी मीनिंग रेखा चित्र हुआ, जिन्हें कि समाज में आज भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, गोवा में विशेष रूप से. अब ऑथर कहते हैं, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. ऑथर गोवा के हैं भी और उन्होंने गोवा में ही अपना समय बिताया मुख्य रूप से, तो गोवा की कुछ बातों को वे याद करते हैं, ट्रेडिशनल, पारंपरिक, और याद करते हुए कहते हैं कि हमारे पूर्वज आमतौर पर उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों के संस्मरण याद करते हुए सुने जाते हैं, जिनमें वे पुर्तगालियों एवं उनके प्रसिद्ध ब्रेड के टुकड़े को याद करते हैं. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. ब्रेड खाने वाले चाहे अब नहीं रहें, किंतु बनाने वाले अभी भी यहाँ हैं. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. कहते हैं ऑथर कि हमारे बीच अभी भी मिक्सर्स, मोल्डर्स ढालने वाले और ब्रेड पकाने वाले आज तक मौजूद हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. इतना ही नहीं, वो पुरानी जांची परखी भट्ठियाँ अभी भी हैं, मतलब अभी भी उसका उपयोग शौक से होता है, ज़रूरत के लिए नहीं, शौक से.
The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. पुर्तगीज एज में जब ये बेकर्स लोव्स ऑफ ब्रेड को बेचने आते थे तो बांस की एक छड़ से कुछ अलग झंझनाहट सी आवाज़ वो निकालते थे और ऐसा लगता था जैसे कि ये उनके आने का सिग्नल है। तो ऑथर कहते हैं कि ये समय तो काफ़ी पुराना हो गया लेकिन आज भी कहीं कहीं पर वो आवाज़ सुनने को मिलती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशंस। हो सकता है वो उस समय के जो उसके पूर्वज या पिता जिंदा नहीं होंगे लेकिन उनके वंशज आज भी उस ट्रेडिशन को, उस प्रोफेशन को चला रहे हैं। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा। गोवा में ऐसे बेकर्स को पैडर करके बुलाया जाता है आज भी। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय ये बेकर्स हमें बहुत ही प्यारे होते थे। हम लोग उन्हें फ्रेंड के रूप में भी मानते थे, कॉम्पेनियन साथी के रूप में भी और गाइड अपने मार्गदर्शक के रूप में भी उन्हें मानते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो कितने बार आते थे? एक दिन में 2 बार आते थे। कब कब आते थे? वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। एकदम सवेरे में जब वो बेचने के लिए आते थे और फिर एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट। और जब उसका बड़ा सा ये बास्केट खाली हो जाता था तो फिर कहने का मतलब शाम में फिर आते थे। द जिंगलिंग थ्रेड ऑफ हिज बैम्बो woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। सवेरे में जब हम लोग सोए होते थे उसी समय ये आते थे और इनके ये बांस की धमाकेदार संगीत हमें नींद से जगा देता था और हम उनसे मिलने और अभिवादन के लिए भागते थे। Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all। ऐसा क्यों था? क्या वो लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए? नहीं, ऐसा नहीं था। The loaves were bought by some पास्तीन और बैस्तीन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। वो जो मेड सर्वेंट जो हुआ करती थी ना उस समय उन्हें पास्कीन या पास्तीन के नाम से जाना जाता था। तो वो लोग जाकर लेती थी लोव्स ऑफ ब्रेड। तो आखिर बच्चे क्यों जाते थे? वाट वी लॉन्ग फॉर वेर दोज ब्रेड बैंगर्स विच वी चोज केयरफुली। बच्चों के लिए वो अलग से बेकर्स ब्रेड बैंगर्स लाते थे, लोव्स ऑफ ब्रेड नहीं, ब्रेड बैंगर्स, जिसके लिए बच्चे जाते थे, दौड़ कर जाते थे और सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स इट वाज अ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभी तो ये ब्रेड बैंगर्स एक विशेष किस्म की मीठी ब्रेड हुआ करती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ। जैसा कि पहले भी चर्चा में आ चुका है और हमने किया था कि नानबाई बेकर्स का प्रवेश कैसे होता था। एक विशेष प्रकार का बांस का उन लोगों का स्टिक बना होता था जिससे झंझंग की आवाज़ होती थी, उसी के द्वारा उनका अराइवल होता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बो ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से सिर पे रखी टोकरी को संभालते थे और दूसरे हाथ से बांस को जमीन पर मारते थे। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। घर की मालकिन जो लोव्स ऑफ ब्रेड लेने जाती थी उनको गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करते थे और अपनी टोकरी को वो खड़ी हुई बांस की जो लाठी होती थी उस पर वो बेकर्स रखा करते थे। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। जब हम बच्चे बीच में शामिल होने जाते थे तो हम लोगों को एक हल्की सी झिड़की के साथ एक और कर दिया जाता था और ब्रेड जो वो बास्तीन और पास्तीन आती थी उन्हें दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप। लेकिन हम लोग थोड़े ही मानने वाले थे। वी वुड क्लाइंब अ बेन और द parapet एंड पिप इन टू द बास्केट समहाउ। तो हम लोग बेंच पे चढ़ जाते थे या पैरापेट मतलब रेलिंग पे चढ़ जाते थे और पिप मीन्स झांकना और बास्केट में किसी भी प्रकार झांक कर देख लेते थे कि उनके ब्रेड बैंगर्स हैं या नहीं।
I can still recall the typical fragrance of those loaves. बहुत अच्छी खुशबू होती थी उन लोव्स की, आज भी मुझे याद आती है. लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन. लोव्स किसके लिए होता था? बड़ों के लिए, और बैंगल्स बच्चों के लिए. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. जब ब्रेड बैंगल्स हमारे लिए आता था तो हम लोग ब्रश करना या मुंह धोना ये सब कुछ भी हमें याद नहीं रहता था. एंड वाई शुड बी, अब क्यों याद रहेगा? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? पहले अभी जैसे आप लोगों को ब्रश है, पेस्ट है, लगाते हैं और ब्रश पे पेस्ट लगाए, ब्रश कर लिया. पहले ऐसा नहीं था. पहले आम की डाली या पत्ती को तोड़कर उससे कुची बनाई जाती थी, फिर ब्रश किया जाता था. तो कहते हैं ऑथर, कौन उतना तकलीफ़ उठाने जाकर मैंगो लीफ तोड़े और फिर उससे टूथ ब्रश करे. आखिर ज़रूरत भी क्या है इसकी? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. क्या बाघ कभी ब्रश करता है क्या? तो बच्चों ने अपने आप को शायद टाइगर से कंपेयर किया और कहते हैं बाघ कभी ब्रश करता है क्या? हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. ये जो गरम चाय जितना कुछ भी है दांत का, सबको वो अच्छी तरह तो धो ही डालता है. तो ये सच्चाई तो नहीं है तो ये गलत. लेकिन बच्चे अपने आप को ऐसे कंसोल करते थे. ओके, इन दिस वे द फर्स्ट पार्ट ऑफ this story, A Baker from Goa, first part of this very story has been completed. Okay, now the comprehension check. The first question is, what are the elders in Goa nostalgic about? The elders in Goa are nostalgic about loaves of bread, which were famous from Portuguese time, and the people loved to eat them because they were fond of it. Second question, is bread making still popular in Goa? How do you know? Yes, bread making is still popular in Goa. We can know it by finding steel mixers, the molders and the bakers in Goa. The age-old furnaces can still be found there. And not only it, the main festivals and occasions are still not celebrated without loaves, bowl or bread bangers. In this way, it can be said. And the third question is, what is the baker called? The baker is called pedder in Goa. And the last question, when would the baker come every day? Why did the children run to meet him? At first, the answer of the first part of the question, when would the baker come every day? When the author was a child, the baker would come twice a day, once in the morning and second in the evening when his huge basket used to be empty. Every day the children ran to meet him because they loved to eat bread bangers. Because to get bread bangers, sweet bread bangers. When the baker arrived to their houses, they gathered and rounded him. They started to peep into the basket, climbing on the railings and benches to get bread bangers. So the children ran to meet and greet him to have bread bangers. So students, in this way, the first part of this story has been completed. In our next video, we will complete this chapter by its second part. Thanks a lot.